Hello everybody, welcome back to your accounts class. Hope you guys are good, fine, healthy, happy and safe at your home. Moving ahead to our content, that is cash flow statement. Now, we have already studied what is cash flow, right? Cash inflow, outflow, cash flow statement, activities under cash flow statement, AS3. Okay, AS3, accounting standard 3, we have studied. Now, today we will study ascertainment of cash flow from operating activities. Ascertainment means find out, right? So, today we will study how to find out cash flow. अब हमने पढ़ तो लिया कि कैश फ्लो होता क्या है. Now, today we will study how to find out, okay? So, there are two methods, direct method and the second is indirect method. Now, whether cash flow comes from operating activities, investing activities or financing activities, we are having two methods to ascertain the cash flow statement. The thing is this, that cash flow from operating activities can be ascertained from direct method, but indirect method can only be used for ascertainment of investing and financing activities. Sometimes also use direct method. So firstly we will study ascertainment of operating activities. Okay, cash flow from operating activities. Now what is direct method? Let us know this. Moving ahead, direct method. Now, what happened, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो ये अंडर डायरेक्ट मेथड होता है उसमें जो एक्चुअल कैश रिसिप्ट होती हैं, ऑलराइट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग रिवेन्यूज, जो भी हमारे प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट या आई विल से रिवेन्यूज इज अ बेटर वर्ड देन प्रॉफिट हेयर दिस टाइम. ऑपरेटिंग रिवेन्यूज से हमें जितनी भी कैश रिसिप्ट मिलती हैं और we give the cash payment, actual cash payment for operating expenses, that all are arranged or presented in a cash flow statement. Now here a question arises that what is cash receipt? What the question arises कि ये cash receipt क्या होता है? ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैश रिसिप्ट को लिख दिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज कैश रिसिप्ट, बिकॉज दिस वर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड many times in this unit. So direct method in here, cash receipt. जो हमारा कैश रिसिप्ट होता है, कैश रिसिप्ट ये क्या होता है, एक प्रूफ होता है. प्रूफ क्या, जो हमने परचेजेस इशूड करी है, परचेजेस मीन्स वट एवर गुड्स वी हैव सोल्ड और वी हैव गिवन सर्विस और गुड्स, ओके, उसका पेड अमाउंट बाय कस्टमर का एक प्रूफ होता है. ओके, कैश रिसिप्ट इज ए प्रूफ ऑफ परचेज issued when a buyer has paid in cash. Right? A printed document for a specific service or good. So cash receipt तभी बनती है जब हमें पेमेंट कैश में मिली होती है. ऑलराइट, कैश रिसीप्ट में हमने पेमेंट नहीं करी होती है, हमें पेमेंट मिली होती है. नाउ हेयर यू कैन सी वेरी इजीली, दिस इज ए कैश रिसिप्ट. कैश रिसिप्ट कुछ ऐसा होता है, इसमें आपका कंपनी का नेम आता है, कैश रिसीप्ट फ्रॉम आता है एंड
उसके बाद for the reason for which the cash was received. All right, one more cash receipt I am having here. इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, let us study. Okay, so now यहाँ पे कंपनी का नेम होता है, whatever company is. If this is for Beer Shiva, then here will be name of Beer Shiva. Address Ranikhet. Okay, कैश रिसिप्ट का नंबर होगा, आपकी कैश रिसिप्ट का कौन सा नंबर है, बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी कैश रिसिप्ट. हम इसमें डेट मेंशन करेंगे, कैश रिसिप्ट किस डेट के लिए है, और ये कैश जो रिसीव्ड हुआ है ये फ्रॉम किससे हुआ है. ओके, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए कस्टमर और नेम ऑफ ए क्लाइंट. Customer when we goes for good, client when we goes for services. Okay, now of, अब ये कैश जो रिसीव्ड हो रहा है ये कितने अमाउंट के लिए हो रहा है, एंड फॉर मीन्स किस चीज के लिए हम कैश रिसीव्ड कर रहे हैं, जो गुड्स है सर्विसेज है हम वो मेंशन करेंगे. नाउ टोटल अमाउंट हम लिखेंगे. अगर कोई बैलेंस ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू इतना लिखेंगे, इतना अमाउंट उस पर्सन को देना था हमें, इतना अमाउंट हमने रिसीव्ड कर लिया है. और अगर कोई अमाउंट अभी बचा हुआ है वो भी हम मेंशन करेंगे. वी विल साइन बाय. नाउ अब हम लिखेंगे कि ये जो पेमेंट है ये कैसे हमें रिसीव्ड हुई है, इन फॉर्म ऑफ कैश में हुई है, नोट्स में हुई है, चेक में हुई है. यहाँ पे डॉलर का मेंशन होता है. लाइकवाइज ये क्या है, हमारा कैश रिसिप्ट स्टेटमेंट है. नाउ द वर्ड आई एम यूजिंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मीन्स, स्टेटमेंट इज एन अपैरेंस प्रेजेंटेशन विच शोज, जो हमें दिखाती है, जो उसके अंदर का जो भी मेंशन होता है चीजें, हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट. यानी कि एक प्रेजेंटेशन, एक फॉर्मेट विच शोज अस द मैटर इनसाइड. ऑलराइट, हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं. So cash receipt is here. Now again we are moving to our direct method. Direct method में I'm going to raise this ink portion. Right. Moving ahead. आगे बढ़ते हैं. तो डायरेक्ट मेथड में जो क्या होती है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है. नाउ इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी आइटम रिकॉर्डेड होती है, सिर्फ वही आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन एक्यूरल बेसिस. ओके, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डायरेक्ट मेथड में केवल वही आइटम्स रिकॉर्डेड होते हैं जो कि कैश में किए गए रहते हैं. ओके, नाउ हमारी फर्म में क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं, एक्यूरल बेसिस. एक्यूरल मींस ट्रांजैक्शंस कैश में हुई हो या क्रेडिट में हुई हो, हम हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में. नाउ जो ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस अब कैश में हो गई है, हम क्या करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे. वी विल मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स. अब हम क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे, हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे. जो क्रेडिट की एंट्रीज हमने ओपन करी थी हम उन्हें क्लोज करेंगे बाय द एंट्रीज ऑफ कैश. नाउ अब हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर. कस्टमर से हमें कितना कैश रिसिप्ट हुआ है. नाउ अब ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसका यहां पर ये फॉर्मूला है. हियर इट इज. जितने भी रिवेन्यूज हुए हैं ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितने भी रिवेन्यूज हुए हैं उसमें हम ट्रेड रिसीवेबल्स, बिगिनिंग में जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो ऐड करेंगे. ऑलराइट, फिर हम लेस क्या करेंगे, एंड के ट्रेड रिसीवेबल्स. इसके बाद हमें जो भी पोर्शन लेफ्ट होता है डेट इज अवर कैश रिसिप्ट्स बाय कस्टमर्स. ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है,
जो पेमेंट हम करते हैं सप्लायर को, अब वो हम कैसे इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास कुछ पेमेंट की रिसिप्ट्स होती हैं, हम उसको सीधे भी लिख सकते हैं, बट ये सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट के ट्रांजैक्शंस में ही यूज होता है। व्हेन the amount of transaction increases, at that time we have to use certain methods to evaluate or ascertain or to find out. Then कैश पेमेंट सप्लायर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी हमारी परचेजेस हैं। नाउ परचेजेस में क्या होता है, हम परचेजेस अगर हमने परचेज करी है, ऑलराइट, परचेज हम क्या परचेज करेंगे, और ये जो भी परचेज होता है ये करंट बेसिस पे होता है, यहाँ पे फिक्स इंक्लूड नहीं होता है। ओके, ऑपरेटिंग में कभी भी फिक्स परचेजेस इंक्लूड नहीं होती हैं। नाउ परचेजेस हो सकती है हमारी गुड्स से रिलेटेड रॉ मटेरियल। सो परचेजेस के टाइम हम करते हैं पेमेंट, वी विल इंक्लूड अवर परचेजेस एंड वॉट एवर ट्रेड वी हैव पेड इन बिगिनिंग लेस ट्रेड पेएबल एट द एंड। ओके, एंड में जो हमने ट्रेड पेएबल करी हमें बस वो डिडक्ट करनी है इन द केस ऑफ कैश पेमेंट। इस तरीके से हमें कैश पेमेंट क्या होगी, फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। नाउ डायरेक्ट मेथड में देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच आई हैव टू टेल यू। फॉर दैट you have to wait for my next video lecture, and for that you need to press the bell icon and subscribe the channel. So good luck, have a nice day, and thank you.